Welcome to the lecture 12 of Math 120. In today's lecture, we are going to discuss row space, column space, null space, their bases and dimensions. We shall redefine the rank of a matrix. Nullity is basically dimension of the null space, and we shall also discuss basis of a subspace generated or spanned by a set of vectors. So these things we are going to discuss in today's lecture. First of all, in order to discuss the row spaces and column spaces, we need to know what are the row and column vectors. I hope you already know what is a row vector and what is a column vector. If we are given a matrix of order m cross n, it has m rows and n columns. So each row of this matrix, we call it, each row of this matrix, this one, we call it row 1, this one, and the second row, we call it row 2, and so on. So how many rows do we have here? Row 1, here we have row 2. How many rows? How many rows do we have? M rows, and the last one is Rm. So M rows, but you can see that how many elements are there in one row? There are n elements. There are n elements. This is very important to remember, so that we know that each row belongs to Rn. Okay, each row belongs to Rn. So the dimension of each row is basically n. Remember this. Similarly, if we write the column of these matrices here, we call it column 1, we call it column 2. It is a vector basically. So this is your column 1, this is your column 2, and so on. How many columns do we have here? We have n columns. Okay, n columns. And what is the dimension of each column? It belongs to, all these columns belongs to Rm. Okay. So if we have a matrix A of order m cross n, then we have m rows with n dimension, and we have n columns with m dimension. Okay, each row belongs to Rn, and each column belongs to Rm. I hope you remember it, because we are going to use it in the row spaces and column spaces. Once you know the row vectors and column vectors, for example, in this column, in this example, we have a matrix A. This one, sorry, we have this matrix A. Its order is 2 cross 3. Now we have 2 rows, and the dimension of each row is basically each vector. Now it becomes vector. It belongs to R3, and we have 3 columns, and the dimension of each column is, it belongs to R2. So remember this. Now we are going to define row spaces and column spaces and null space. These vectors, in this example, row vectors, if we write the set of all linear combinations of these rows, if we write set of all linear combinations of these rows, then we say that we have a space sorry, we have a space spanned by
spanned by these row vectors 1, 3, -2, and 2, 4, 5. So we shall get a span. We shall get if we write the set of all linear combination of these two vectors, uh, that set of all linear combinations will make a space, and we call this space a row space. This will be your row space. Okay. Similarly, if we write the set of all linear combinations by taking these columns in this columns of this matrix, we get another space which is basically spanned by these vectors, column vectors 1, 2, 3, 4, and -2, 5. Or we can write this is a space spanned by C1, C2, and C3. And this space is called a column space. Column space. Okay. So these are basically column spaces and row spaces. Row space is what? Row space is a space generated by rows of a given matrix. Okay. And the column space is the space generated by columns of a given matrix. So if we look at the proper definition of row space and column space, you can see here that if A is an n cross n matrix, n cross n matrix, then the subspace of Rn spanned by the row vectors. अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, a subspace of Rn, क्योंकि रो वेक्टर्स जो हैं वो Rn को बिलोंग करते हैं. तो यहाँ पे रो स्पेस जो होगी उसकी डायमेंशन वो बेसिकली उसके वेक्टर्स Rn को बिलोंग करेंगे. ठीक है. So we call it row space, and the subspace of Rm, now what we are calling here Rm. So this is M. Spanned by the column vectors of A is called the column space of. Now, what is the solution space of a homogeneous linear system of equations Ax equal to Z, Ax equal to 0? If we are given any matrix A corresponding to this matrix, we can write a homogeneous linear system A by writing Ax equal to 0. Now, this homogeneous linear system will have solutions, because homogeneous linear systems are always consistent. They have at least one solution. One solution is, trivial solution is what? X equal to 0. So we are not interested here in zero solution. Even then, if we have only zero solution, for example, this one 0, this is again a subspace. This is again a subspace of Rn. Okay, so this 0 will be a subspace of Rn. This is a subspace, and we call it a null space. Now, if this homogeneous linear system has non-trivial solutions, non-trivial solutions means they have other than trivial solutions, then the space generated by set of all solutions, yeah, space which contains all solutions of this homogeneous linear system, we call it null space. So null space, basically it is a space which contains set of which is basically set of all solutions of Ax equal to 0, this homogeneous linear system. So अगर homogeneous linear system के non-homogeneous solutions, non-trivial solutions exist करेंगे तो कितने होंगे? Infinite many solutions होंगे. Infinite many solutions को सारों को हमने एक space में, एक set में put कर दिया. That set is basically called a null space. If you have any question, you can ask me.
नो, अब देखें यहाँ पे हमने लिखा है रो स्पेस को इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेन. रो स्पेस इज व्हाट? रो स्पेस ऑफ ए. रो स्पेस हमेशा किसी मैट्रिक्स की होगी तो हम क्या लिखेंगे? रो स्पेस ऑफ ए. इट इज, अगर जनरल मैट्रिक्स है जो कि हमने डिफाइन किया था पहले m क्रॉस n का, तो ये एक स्पेस होगी जो कि रोज से जनरेट होगी और ये हमेशा सब स्पेस होगी Rn की. Column space of A is what? It is spanned by the columns of the matrix A. और ये किसकी सब स्पेस होगी? Rm की. तो कॉलम स्पेस जो है वो मैट्रिक्स के कॉलम जनरेट करते हैं उसको, और रो स्पेस को मैट्रिक्स की रोज स्पेन करते हैं. ठीक है. और नल स्पेस क्या होती है? नल स्पेस, अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग Ax इक्वल टू 0 होमोजेनियस लीनियर सिस्टम लिखें, तो set of all solutions of this homogeneous linear system is basically the null space of a given matrix. If you have any question, you can ask me. Now we have to prove that these are subspaces. Basically, row space and column space and null space, they are subspaces of a vector space, because Rn and Rm are already a vector spaces. So we can prove it very easily. I left this thing as an exercise for you people, how to prove these spaces as a subspace of Rn or Rn. Okay. Now we are going to discuss a theorem. Elementary row operations do not change the null space of a matrix. Second is, elementary row operations do not change the row space of a matrix. What does it mean? And the third one, we are going to discuss it after a while. देखिए, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, फॉर एग्जांपल दिस वन, द जनरल वन, दिस वन, ये एक मैट्रिक्स है, आप इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा दें और इसको एचेलन फॉर्म में रिड्यूस कर लें या रिड्यूस एचेलन फॉर्म में रिड्यूस कर लें. ठीक है. तो इसके रोज और कॉलम्स जो हैं वो, रोज और कॉलम्स जो है चेंज हो जाएंगे. ठीक है. लेकिन जो ए की रो स्पेस होगी या जो ए की कॉलम स्पेस, नल स्पेस होगी, वो दोनों मैट्रिसेस की सेम रहेगी, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन. ठीक है. अगर आपके पास कोई ए गिवन मैट्रिक्स है, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा यहाँ पे, अगर आप इस मैट्रिक्स को रिड्यूस कर दें एचेलन फॉर्म में, फॉर एग्जांपल 1 0 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट, ये अगर आप इसको एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, व्हाटएवर इट इज, तो इसकी रो स्पेस और इसकी रो स्पेस क्या होंगी? आइडेंटिकल होंगी. इसकी रो स्पेसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सिमिलरली, अगर आप इसी मैट्रिक्स को एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के एचेलन फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं या रिड्यूस एचेलन फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं, तो इसकी जो नल स्पेस होगी, सेट ऑफ ऑल होमोजेनियस लीनियर सिस्टम, और ए को आप कन्वर्ट कर दें फॉर एग्जांपल बी मैट्रिक्स में, वेयर बी इज व्हाट? बी इज द एचेलन फॉर्म ऑफ the matrix A, or B is reduced echelon form of the matrix A. B is echelon form of A. ठीक है. तो ये जो पहला सिस्टम है, इसकी भी नल स्पेस, सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, ये भी वही होगी, और Bx इक्वल टू 0, इसकी भी जो नल स्पेस होगी वो आइडेंटिकल होगी. लेकिन रिमेंबर दैट एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस जो है वो कॉलम स्पेस को चेंज कर देते हैं. ठीक है. एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कॉलम स्पेस को चेंज कर देते हैं. हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं. ठीक है. हाउ इज दिस पॉसिबल? यहाँ पे देखिए इसका मैंने एक एग्जांपल, यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन माइट चेंज द कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स. अब देखिए हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं यहाँ पे, ए और बी.
A matrix is 1 3 2 6 and B is its echelon form। echelon फॉर्म में रिड्यूस किया हमने, कैसे किया? रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में से माइनस कर दें तो रो 2 आपके पास 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए कॉलम स्पेस में अगर आप देखें तो जो पहला मैट्रिक्स है इसकी कॉलम स्पेस ये वेक्टर जनरेट कर रहा है C1 कॉलम 1, कॉलम 1 क्यों? क्योंकि कॉलम 2 जो है वो इसका मल्टीपल है। कॉलम 2 जो है यहाँ पे कॉलम 2 इज व्हाट इट इज 3 टाइम्स कॉलम 1। तो सिर्फ कॉलम 1 जो है वो जनरेट करेगा जो आपकी कॉलम स्पेस होगी। कॉलम 2 तो उसी स्पेस के अंदर होगा ना, क्योंकि कॉलम 2 लीनियर कॉम्बिनेशन है, या कॉलम 2 जो है वो स्केलर मल्टीपल है कॉलम 1 का। तो सिर्फ एक कॉलम C1 है जो कि कॉलम स्पेस को जनरेट करेगा। तो ये वाला 1 2 जो है ये कॉलम स्पेस को जनरेट करेगा। लेकिन अगर आप बी देखें, बी मैट्रिक्स, इसमें जो पहला कॉलम है C1, ठीक है, और इसी तरह C2 जो है इसमें C2 इज 3 टाइम्स C1, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। C2 जो है वो स्केलर मल्टीपल है कॉलम 1 का, तो B में भी कॉलम 1 ही जो है वो जनरेट करेगा कॉलम स्पेस को। ठीक है, लेकिन ये जो पहला कॉलम है ए मैट्रिक्स का, ये कौन सी स्पेस जनरेट करेगा? ये होगी सब स्पेस R2 की, जिसमें दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो हैं। लेकिन बी का जो कॉलम है C1 बी का, इसके जो आप वेक्टर देखेंगे क्या है 1 0। ठीक है, तो ये क्या जनरेट करेगा? ये सिर्फ एक्स एक्सिस को जनरेट करेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 0 वेक्टर है। फिर एज ए का जो कॉलम वेक्टर है ये वाला, ये कोई एक मे बी स्ट्रेट लाइन को जनरेट करे। ठीक है, इस तरह। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट स्पेसेस बनती हैं। ये आपकी ए के कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉलम स्पेस बनती है, और बी के कॉरस्पॉन्डिंग ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक सब स्पेस बनती है R2 की। So these two spaces are different spaces, so that's why we conclude here that elementary row operations might change the column space of a matrix, whereas अगर आप रो स्पेस देखें इसी एग्जांपल में अगर आप रो स्पेस देखें तो A में आप अगर देखें तो पहली रो ये है और दूसरी रो ये है। ठीक है, ये रो 1 है, इसमें भी ये रो 1 है। ठीक है, तो रो 2 जो है वो स्केलर मल्टीपल है बेसिकली रो 1 का, इसमें वो उसके स्पेन में होगा ऑलरेडी, और 0 0 ऑलरेडी इसके स्पेन में होगा। तो बेसिकली ए की जो रो स्पेस है वो रो 1 से जनरेट हो रही है, और बी की भी स्पेस जो है रो 1 से ही जनरेट हो रही है। और यू कैन सी हियर दैट दोनों की फर्स्ट रोज सेम है। अगर ये सेम है तो ये एक सेम स्पेस को जनरेट करेंगे, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो कि आर स्क्वायर का के सबसेट्स होंगे दोनों, और ये सब स्पेसेस भी होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप नल स्पेसेस देखें इन दोनों मैट्रिसेस की, तो ए का जो नल स्पेस होगा और बी का जो नल स्पेस होगा उसमें आइडेंटिकल वेक्टर्स होंगे। अगर आप ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू 0 ये सॉल्व करें, आपके पास सेट ऑफ कितना इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। सॉल्यूशन क्या होगा? x1 इक्वल टू माइनस 3x2 यही होगा। तो x2 को अगर आप पैरामीटर ले लें तो आपके पास इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। इसी तरह b वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप होमोजेनियस लीनियर सिस्टम लिख दें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आपके पास x इक्वल टू माइनस 3x2 ही आता है, जिसमें x2 को अगर आप पैरामीटर रखें तो यू वुड डेफिनेटली गेट द सेम set of all vectors, which is basically the null space of these matrices. तो null space भी identical है, row space भी identical है, whereas column space जो है वो change हो गई है। So elementary row operations जो हैं they might change
the column space of a given matrix. So remember this. If you have any further question, you can ask me here. अच्छा, अब तीसरा पार्ट क्या है इस थ्योरम का? तीसरा पार्ट यह है कि if a matrix B is in row echelon form, if a matrix B is in row echelon form, which is obtained from the matrix A basically, then the row vectors with the leading one, then the row vectors with the leading ones, या आप कह सकते हैं जो ये pivot entry है, वन हो या ना हो, it's not necessary, अगर आप वन बना लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? So then the row vectors with the leading one, the non-zero row vectors, you can say then, form a basis of the row space of B. ठीक है? Form a basis for the row space of B. अगर कोई भी मैट्रिक्स B है, अगर वो रो एचेलॉन फॉर्म में है, तो उसमें जो नॉन जीरो रोज होंगी वो उस रो स्पेस की बेसिस होंगी, और जो उसके कॉलम वेक्टर्स होंगे विद द लीडिंग वन, वो उसके कॉलम स्पेस की बेसिस होंगी, ठीक है? कॉलम वेक्टर्स में जो लीडिंग वन है वो बेसिकली रो वेक्टर्स में देखने हैं। रो वेक्टर में लीडिंग वन देखेंगे, उसके कॉलम में देखेंगे, ठीक है? तो वो जो कॉलम्स होंगे लीडिंग वंस के साथ, वो बेसिस होंगी कॉलम स्पेस ऑफ बी। कोई भी बी मैट्रिक्स है वो एचेलॉन फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, ये एक मैट्रिक्स है जो कि ऑलरेडी एचेलॉन फॉर्म में है, बल्कि ये तो हाँ एचेलॉन फॉर्म, ठीक है? अच्छा, अगर ये बी मैट्रिक्स है, इसकी जो रो स्पेस होगी वो उसकी बेसिस, वैसे तो रो स्पेस क्या होगी, जो इसकी जो रोज हैं वो जनरेट करेंगे, उसके सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ द बी, वो क्या बनाएंगी, वो रो स्पेस होगी। अब रो स्पेस की बेसिस क्या होंगी, वो वेक्टर, वो रोज जिसमें लीडिंग वन है, यहाँ पे एक लीडिंग वन है, यहाँ पे एक लीडिंग वन है, यहाँ पे एक लीडिंग वन है, तो ये रो वन, रो टू और रो थ्री, ये आपकी जो रो स्पेस होगी उसकी बेसिस होगी, ठीक है? रो वन, रो टू और रो थ्री। आप एक्सप्लिसिटली रोज को लिख भी सकते हैं। अगर ये बेसिस होगी तो रो स्पेस, इस रो स्पेस की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस of V is what? It is 3. Dimension of any subspace is the number of elements in the basis set. यही होगा। अच्छा, ये हो गया कि रो स्पेस की क्या बेसिस होगी। अब हम देखते हैं कि कॉलम स्पेस की क्या बेसिस होंगी। अच्छा, कॉलम स्पेस क्या होंगी, जो ये चारों कॉलम्स जो हैं जो स्पेस जनरेट करेंगे वो कॉलम स्पेस होगी, और उसकी बेसिस क्या होगी। अब आप देखें कौन कौन से कॉलम में पिवट एंट्री है, एक इस कॉलम में है, एक इस कॉलम में है और एक इस कॉलम में है, ठीक है? अब आपने कॉलम्स देखने, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 4। कॉलम 1 में, कॉलम 2 में और कॉलम 4 में पिवट एंट्रीज हैं, ठीक है? तो ये जो तीन कॉलम्स होंगे ये बेसिस सेट होंगे कॉलम स्पेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है? और इसकी डायमेंशन क्या होगी, 3। हमेशा ये याद रखें, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस और डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ये दोनों आइडेंटिकल होती हैं। क्यों सेम होती हैं? क्योंकि पिवट एंट्री या लीडिंग वन जो है, अगर आप किसी भी एक मैट्रिक्स में देखते हो तो चाहे रोज में देखें या कॉलम्स में देखें, दोनों का नंबर ऑफ पिवट एंट्रीज या नंबर ऑफ लीडिंग वन जो है वो हमेशा सेम होगा। तो डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस और डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ अ सर्टेन मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल, ये इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ बी इज अगेन इट इज 3। तो आप देख सकते हैं ये 3 जो है वो अगेन यहाँ पे भी 3 है। So dimension of a row space and dimension of a column space are always same. If you have any question, you can ask me. ये पहले हमने एग्जांपल डिस्कस कर ली है। Now another theorem, बल्कि मैंने अभी जो आपको बात बताई है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं,
नहीं, ये और चीज है। हाँ, if we have two matrices A and B and they are row equivalent, okay, and B is in echelon form, row echelon form, then non-zero rows of B forms basis of row space of A, which is a which is same as row space of B. That is, row space of A is equal to row space of B. अब देखें, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, पहले तो हमने बी मैट्रिक्स को डिस्कस किया था जो कि एचलन फॉर्म में था। अब हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, और बी क्या है, रो इक्विवेलेंट है ए के, ठीक है। बी जो है वो रो इक्विवेलेंट है ए के। व्हाट डज इट मीन? वी ऑब्टेन बी बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन ए पे अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करें 3 4 5, अगर वो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वो जो मैट्रिक्स होगा एचलन फॉर्म में जो कन्वर्ट हुआ है उसको हम रो मैट्रिक्स बी कह देते हैं। तो अब हमने ए मैट्रिक्स की कॉलम स्पेस या ए मैट्रिक्स की रो स्पेस फाइंड करनी है या उनकी बेसिस फाइंड करनी है, तो जो ए गिवन मैट्रिक्स होगा उसकी बेसिस और डायमेंशन वही होगी जो कि बी मैट्रिक्स की बेसिस और डायमेंशन होगा, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स की अगर हमने, दिस थ्योरम टेल्स अस दैट किसी भी मैट्रिक्स की जो कि एचलन फॉर्म में नहीं है, अगर हमने उसकी रो स्पेस या कॉलम स्पेस या नल स्पेस की बेसिस फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। एचलन फॉर्म में रिड्यूस मैट्रिक्स जो है, से वी कॉल इट बी। बी की जो रो स्पेस की जो बेसिस होंगी या कॉलम स्पेस की जो बेसिस होंगी वही ए की भी बेसिस होंगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे कॉलम स्पेस का वर्ड यूज किया है, कॉलम स्पेस के लिए नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि कॉलम स्पेस जो है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस जो है वो कॉलम स्पेस को चेंज कर सकते हैं, हमने एग्जांपल किया। तो सिर्फ और सिर्फ रो स्पेस जो है उसकी बेसिस सेम होंगी ए और बी की, कॉलम स्पेस की नहीं होंगी। कॉलम स्पेस कैसे फाइंड करना है या उसकी बेसिस कैसे फाइंड करनी है हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस। अब यहाँ पे एग्जांपल अगर देखें, अब हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, हमने इसकी बेसिस फाइंड करनी है रो स्पेस की, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स सॉरी ए मैट्रिक्स की रोज कितनी है, 1 2 3 4, 4 रोज हैं, और ये चारों की चारों रोज बिलोंग किसको करती हैं, बेसिकली दे बिलोंग्स टू कॉलम्स कितने हैं, 6। तो ये रो 6 को बिलोंग करता है, आर 6 को बिलोंग करती है ईच रो। हम in order to find the basis for A, what we do, we convert A into echelon form। echelon form में आप कन्वर्ट कर दें, इसको ट्रांसफॉर्म कर दें by applying series of elementary row operations। अब इसकी जो बेसिस होंगी वही बेसिस होंगी ए की, ठीक है। अब इसमें बेसिस कैसे फाइंड करनी है, लीडिंग वन आपने चेक करने हैं ईच रो में, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये रो 1 रो 2 और रो 3 तीन रोज हैं जो कि बेसिस होंगी आर सेट की, या बी सेट कह लें इसको, ठीक है, जो कि थ्योरम में हमने कहा था बी सेट। आर इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये रिड्यूस किया गया है एचलन फॉर्म में। तो ये तीन रोज जो होंगी ये बेसिस होंगी बी मैट्रिक्स की एज वेल एज ए मैट्रिक्स, ठीक है। So this is how we can find the basis of row space of any matrix, ठीक है, रो स्पेस ऑफ एनी मैट्रिक्स। अब देखते हैं कि अगर हमने कॉलम स्पेस की फाइंड करनी है, कॉलम स्पेस की बेसिस फाइंड करनी है तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। इट्स वेरी इजी। अगर आपने इसी मैट्रिक्स की कॉलम स्पेस की बेसिस फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे ए ट्रांसपोज, सॉरी, हम क्या डिफाइन करेंगे, ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ पे आपने रोज को कॉलम्स में लिख देना है। तो इट इज 1 -3 4 -2 5 एंड 4, ये आपका पहला कॉलम आ जाएगा। दूसरा 2 -6 9 -1 8 2,
ठीक है, और तीसरा कॉलम आ जाएगा 2 -6 9 -1 एंड 9 7, और आखिरी कॉलम क्या आ जाएगा -1 3 -4 2 -5 एंड -4। अब आपके पास ये आ गया ए ट्रांसपोज। अब ये जो ए ट्रांसपोज है, इसमें ए की जो रोज है वो कॉलम्स बन गए, ठीक है, और जो कॉलम्स थे वो क्या बन गए, रोज बन गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज को रिड्यूस करेंगे एचलन फॉर्म में, ए ट्रांसपोज को रिड्यूस करेंगे बी मैट्रिक्स में, विच इज बेसिकली द एचलन फॉर्म ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है, एचलन फॉर्म में, ठीक है, एचलन फॉर्म। अब बी मैट्रिक्स यहां पे जो आया, जो कि रिड्यूस एचलन फॉर्म है ए ट्रांसपोज का, उसकी जो रोज होंगी, रो स्पेस, उसकी बेसिस आ जाएंगी। इनफैक्ट हमने क्या किया हुआ है, ट्रांसपोज लिया हुआ है। अब ए ट्रांसपोज की जो रोज है बेसिकली वो ए के कॉलम्स हैं, तो ए ट्रांसपोज की जो रो स्पेस होगी वो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो ए का कॉलम स्पेस होगा, ठीक है। सिमिलरली ए ट्रांसपोज की जो बेसिस होंगी ऑफ द रो स्पेस, अगर उनका हम ट्रांसपोज लें तो वो ए के कॉलम स्पेस की बेसिस होंगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसके साथ टेक्निकली हैंडल किया इसको। रोज कॉलम्स को हमने रोज बना दिया, वही टेक्निक यूज की जो कि पिछले थ्योरम में हमने डिस्कस की थी, या इस एग्जांपल में रो स्पेस के लिए डिस्कस की थी, ठीक है। तो अब ए ट्रांसपोज की जो रो स्पेस होगी वो ए की कॉलम स्पेस होगी। इसी तरह ए ट्रांसपोज की रो स्पेस की जो बेसिस होंगी, अगर उनका हम ट्रांसपोज लें तो वो इन फैक्ट ए के कॉलम स्पेस की बेसिस होंगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी handle to find the basis of the column space of the given matrix। उसको हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, वो कॉलम्स जो है रोज बन जाएंगी। रो स्पेस जो ए ट्रांसपोज की होगी वो इनफैक्ट जो ओरिजिनल ए है उसकी कॉलम स्पेस होगी, ठीक है। इसी तरह बेसिस जो होंगी रो स्पेस की ए ट्रांसपोज की, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स की कॉलम स्पेस की बेसिस होंगी। दिस इज हाउ we find the basis of the column space of a matrix। If you have any question, you can ask me। If you have any question, you can ask me। No? Rank of a matrix। Now we are going to redefine the rank of a matrix। पहले हमने रैंक को कैसे डिफाइन किया था, जब हमने डिटर्मिनेंट्स वगैरह शुरू में लीनियर सिस्टम्स पढ़े थे और मैट्रिसेस पढ़े थे। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द एचलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, यही पढ़ा था हमने। यहाँ पे इसको हम रीडिफाइन कर रहे हैं। रैंक ऑफ ए इज व्हाट, डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस ऑफ एनी मैट्रिक्स ए, ठीक है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज आल्सो द डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए एज वेल। इनफैक्ट ये वही चीज है, देखिए आप रो स्पेस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ए को एचलन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, और एचलन फॉर्म में हम बेसिकली बेसिस सेट क्या होता है, जो कि नॉन जीरो रोज के जो वेक्टर्स होते हैं, रोज होती हैं, वो उसकी बेसिस सेट होता है। तो जितने नॉन जीरो रोज होंगी बेसिकली उतनी ही बेसिस होंगी, बेसिस के डायमेंशन भी वही होगी। तो इनफैक्ट ये रो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन इनफैक्ट वही है, लेकिन हम इसको अब थोड़ा सा डिफरेंट नाम दे रहे हैं कि रैंक किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो डायमेंशन ऑफ अ रो स्पेस और डायमेंशन ऑफ अ कॉलम स्पेस होगा। तो जो पिछली एग्जांपल में हमने देखा था कि बेसिस की डायमेंशन क्या है, यहाँ पे रो स्पेस की, ये आपके पास बेसिस है तो डायमेंशन क्या है 3। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, rank of this matrix A is what, 3, which is again the number of non-zero rows या dimension of the basis of the row space या column space, ठीक है। So this is how we can define also the rank of a matrix। यहाँ पे मैंने नोट में लिखा हुआ है कि
रैंक अगर डायमेंशन ऑफ अ रो स्पेस हो सकता है तो ये डायमेंशन ऑफ अ कॉलम स्पेस भी हो सकता है। और हमें अगर देखें डायमेंशन ऑफ रो स्पेस और डायमेंशन ऑफ अ कॉलम स्पेस या बेसिस ऑफ रो स्पेस एंड बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस हम कैसे फाइंड करते हैं? ए का ट्रांसपोज लेके कॉलम स्पेस की बेसिस आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ए मैट्रिक्स हो या उसका ट्रांसपोज लें, दोनों का रैंक क्या होगा? सेम होगा। सिमिलरली dimension of a row space and dimension of a column space, they are identical or equal always. If you have any question, you can ask me. You people don't have any question till here? ये पहले मैंने आपको बता दिया है कि कॉलम स्पेस जो है वो ए की किसी भी मैट्रिक्स की कॉलम स्पेस जो है वो उसकी रो स्पेस का ट्रांसपोज बी की ट्रांसपोज, और ये पहले मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। If you have any question, you can ask me. Now, ये एक एग्जांपल और गिवन है, ठीक है। Find basically the basis of row space, find the basis of a column space, and find the rank of the matrix A. अच्छा, इस मैट्रिक्स A की रो स्पेस फाइंड करने के लिए या बेसिस ऑफ रो स्पेस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? A मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, ये A मैट्रिक्स है, आप इसको ट्रांसफॉर्म कर दें एचेलॉन फॉर्म। ये हमने एचेलॉन फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। एचेलॉन फॉर्म में जो नॉन जीरो रोज होंगी वो बेसिकली बेसिस होंगी। ये जो सेट होगा ये बेसिस सेट होगा रो स्पेस का, और उसकी जो डायमेंशन है वो 2 है, उसका रैंक 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, एग्जांपल इस तरह की। आई होप यू कैन डू इट। नाउ तो कॉलम स्पेस क्या होगी? आप ए का ट्रांसपोज लेंगे, आपने ए का ट्रांसपोज लेना, ठीक है, ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर आप इसकी इनफैक्ट सॉरी तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 2 7 -15 एंड 2 6 -8, ये आ जाएगा। अब आपने इनफैक्ट ए ट्रांसपोज की रो स्पेस फाइंड करनी है। आप ए ट्रांसपोज को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसकी जो रोज होंगी नॉन जीरो रोज एचेलॉन फॉर्म में, वो बेसिकली इसकी रो स्पेस की बेसिस होंगी ए ट्रांसपोज की। उनका ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या होगी? इनफैक्ट वो होगी ए की कॉलम स्पेस की बेसिस होंगी। तो कॉलम स्पेस की बेसिस हम इस तरह फाइंड करेंगे हमेशा। If you have any question, you can ask me. No? You people don't have any question? Shamir, Hamza, Huzaifa? Are you getting these things? Yes, sir. Okay. यहाँ पे आप देखें कॉलम स्पेस और रो स्पेस में दोनों के अगर डायमेंशन देखें तो 2 है, तो रैंक इसका 2 होगा इस गिवन मैट्रिक्स का, ठीक है। Now we are going to these are a couple of matrices. As an exercise, you have to find the row and column space of the following matrices. यहाँ पे देखें इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, इस सारे रो स्पेस और कॉलम स्पेस की बेसिस आप जब फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप एक चीज नोट करें कि जो बेसिस है ए की, वो आप फाइंड कर रहे हैं with the help of B by transforming A into echelon form, और B के जो वेक्टर्स होंगे ये जो हमने रोज लिखी हैं, ये B की B मैट्रिक्स की रोज लिखी है। These are the rows of row 1 and row 2. It is basically the rows of B matrix which is already in the echelon form, ठीक है। इस मेथड में अगर हमें कोई ये कहता है कि नहीं मुझे ये वाली बेसिस नहीं चाहिए, बी वाली नहीं चाहिए, आई डोंट नीड इट, मुझे वही वेक्टर दो ए के अंदर से जो कि बेसिस बनाए, ठीक है।
ए के वेक्टर्स में से मुझे बताओ कि कौन से वेक्टर्स हैं जो कि रो स्पेस की बेसिस बना रहे हैं। तो ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि ए की बेसिस फाइंड करने के लिए, रो स्पेस की बेसिस फाइंड करने के लिए हम बी के जो रोज हैं उनको ऐसे बेसिस लेते हैं। ठीक है, ये भी बेसिस होंगी, बी की भी बेसिस होंगी रो स्पेस की, और ए की रो स्पेस की भी बेसिस होंगी। हमें पता है कि किसी एक स्पेस की इन्फिनिट मैनी बेसिस एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, जैसे आर स्क्वायर आर क्यूब की हमने स्टैंडर्ड बेसिस को डिस्कस किया था और नॉन स्टैंडर्ड बेसिस को भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो किसी एक स्पेस की इन्फिनिट मैनी बेसिस सेट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए की जो बेसिस हैं वो हमने बी से ऑब्टेन की है। वी ऑब्टेन द बेसिस ऑफ ए फ्रॉम द सेट फ्रॉम दिस मैट्रिक्स बी, ये रो 1 और रो 2। ठीक है, आगे चल के हम ये देखेंगे कि ए सेट की जो बेसिस हैं वो ए के वेक्टर्स ही, ए की रोज ही कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। यू नीड टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द बेसिस ऑब्टेन फ्रॉम द सेट बी एंड द बेसिस ऑब्टेन फ्रॉम द सेट ए। ये आगे चल के हम मजीद डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू गो अहेड, यू कैन आस्क मी। यहाँ पे देखें, ए का ट्रांसपोज लिया, फिर उसकी रोज की बेसिस फाइंड की, रो स्पेस की बेसिस, फिर उसका ट्रांसपोज ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये रो स्पेस की बेसिस है ए ट्रांसपोज की, तो इनका हमने क्या किया, ट्रांसपोज ले लिया। तो ये बेसिकली कॉलम 1 कॉलम 2 आ गया। ठीक है, जो कि बेसिस हैं कॉलम स्पेस की ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। ये चीज हमने पहले डिस्कस कर ली है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ये एक्सरसाइजेज हैं, यहाँ से भी आप कर लें, बुक से भी करें आप, बुक में भी काफी क्वेश्चंस गिवन होंगे। तो आई होप कि आप प्रैक्टिस के लिए बुक की एक्सरसाइज कंसल्ट करेंगे। नाउ द नल स्पेस को यहाँ पे रीडिफाइन किया है, फिर हम आगे नल स्पेस को मजीद इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी मजीद इसकी बेसिस और डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं इसको डिस्कस करेंगे। नल स्पेस किसी भी मैट्रिक्स की, कोई मैट्रिक्स अगर हमारे पास ए है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, तो आपके पास नल स्पेस को हम n ऑफ a से डिनोट करते हैं, और ये बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ax इक्वल टू 0। ठीक है, नल स्पेस को हम सॉल्यूशन स्पेस भी कहते हैं, सॉल्यूशन स्पेस ऑफ होमोजेनियस लीनियर सिस्टम, होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ax इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब नल स्पेस को हमने अगर प्रूफ करना है कि ये सब स्पेस है, तो ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर थ्योरम है, सपोज A is an m cross n matrix, then the null space n of A is a subspace of Rn। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, हम क्लोयर लॉ प्रूफ करेंगे। हम दो सॉल्यूशंस लेते हैं होमोजेनियस लीनियर सिस्टम के x और y, तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये x प्लस वाई जो है n a को बिलोंग करता है। ठीक है, तो x प्लस वाई अगर हम कंसिडर करें एज ए होमोजेनियस लीनियर सिस्टम a इंटू एक्स प्लस वाई, इसको अगर हम कंसिडर करें तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं ax प्लस ए वाई। अब अगर x होमोजेनियस लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन है तो ये भी 0 होगा, और y सोल्यूशन है तो ये भी 0 होगा। अगर ये 0 है तो ये भी 0 है। इसका मतलब क्या है कि a टाइम्स एक्स वाई अगर 0 है तो x प्लस वाई जो है ये भी ये बिलोंग करेगा किसको, नल स्पेस को। क्यों, क्योंकि ये सोल्यूशन होगा नल स्पेस का। इट्स वेरी इजी। सिमिलरली यू कैन सी द अदर थिंग, द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सब स्पेस प्रूफ करना आई होप आप लोगों को आता है, कैसे प्रूफ करते हैं। दो प्रॉपर्टीज प्रूफ करते हैं, आई होप यू नो दोज टू प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, nullity of a matrix. Nullity is basically the dimension of null space of a matrix. Dimension of the null space of a matrix.
ठीक है, आपके पास नल स्पेस क्या होती है? सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस लीनियर सिस्टम। ठीक है, अच्छा, नल स्पेस की फिर हम बेसिस फाइंड करेंगे। नल स्पेस की बेसिस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, दैट इज कॉल्ड बेसिकली नलिटी ऑफ ए, नलिटी ऑफ ए या डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ ए। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि नल स्पेस की बेसिस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, नल स्पेस की बेसिस कैसे फाइंड करेंगे और फिर नलिटी क्या होगी, उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस है। फॉर एग्जांपल ये चीज हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, किधर गया, मैंने फाइंड नहीं किया वो। हाँ, यहाँ पे नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ये कोई हमें अगर ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, तो इसकी नल स्पेस कैसे फाइंड करेंगे? ए मैट्रिक्स को आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कोरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस लीनियर सिस्टम लिखेंगे। ठीक है, आप इसको लिखें ए एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ए एक्स इक्वल टू 0, आपके पास होमोजीनियस लीनियर सिस्टम आ जाएगा। इस होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का आपने फिर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं बाय राइटिंग दिस मैट्रिक्स प्लस अ राइट हैंड साइड कॉलम व्हिच इज अ 0 कॉलम। तो ये एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, इसको एचेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दें। आई होप यू कैन डू इट। इसकी जो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है वो ये होगी। ठीक है, अब यहाँ से हमने वी गो बैक एंड राइट द कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम। मसलन पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, x1 माइनस 4x3 माइनस 28x4 माइनस 37x5 प्लस 13x6 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 ये आ जाएगा 13x6 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन आ जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस। दूसरी में क्या आएगा जी, x2 माइनस 2x3 माइनस 12x4 माइनस 16x5 प्लस 5x6 इक्वल टू 0। और बस दो इक्वेशंस होंगी। ये बाकी जो दो रोज हैं ये सारी की सारी 0 रोज हैं। ठीक है, अब यहां से हम दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। ठीक है, एक x1 के कॉरस्पॉन्डिंग, एक x2 के कॉरस्पॉन्डिंग। ये दो आपके पास पिवट एंट्रीज हैं। ठीक है, बाकी x3 x4 x5 x6 ये सारे के सारे आपको फ्री वेरिएबल्स रखने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप यू नो हाउ टू सॉल्व इट। फ्री वेरिएबल्स क्या होते हैं हमने ये पहले डिस्कस किया हुआ है। तो x3 x4 x5 x6 ये आपको फ्री वेरिएबल्स रखने पड़ेंगे, और फ्री वेरिएबल रखने के बाद आप सॉल्यूशन जो है अगर लिखेंगे तो वो इस टाइप का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसमें आप देखें x3 r है फ्री वेरिएबल, x4 s है, x5 t है, x6 को u रखा गया। अब अगर इस सॉल्यूशन को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें और r s t u कॉमन लें तो आपके पास ये वेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, r s t u हमने कॉमन ले लिया तो ये वेक्टर्स। अब ये क्या है, बेसिकली हमने ये सॉल्यूशन को लिखा इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स r s t u। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस देता है if we vary the value of RSTU। RSTU किसको बिलोंग करते हैं, they belongs to R। ठीक है, RSTU ये सारे के सारे R को बिलोंग करते हैं। अगर R में से इन पैरामीटर्स की वैल्यूज को वेरी करना शुरू कर दें तो बेसिकली आपके पास सारे सेट ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं। इसका मतलब ये है कि नल स्पेस को ये चार वेक्टर्स जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये चार वेक्टर्स नल स्पेस को जनरेट कर रहे हैं। अगर ये चार नल स्पेस को जनरेट कर रहे हैं तो ये इसकी बेसिस होंगे, यही चार वेक्टर्स। ठीक है, यही चार वेक्टर्स जो हैं वो इसकी बेसिस होंगी। ठीक है, अगर ये बेसिस हैं तो नल स्पेस की जो डिमेंशन होगी वो क्या होगी, नलिटी होगी। और यहाँ पे डायमेंशन क्या है, नल स्पेस की 4 है, 4 वेक्टर्स हैं आपके पास, तो इसकी नलिटी इस मैट्रिक्स की A हो जाएगी। ठीक है, नलिटी इज बेसिकली
dimension of the null space of a given matrix. ठीक है. अब let's go back. If you have any question, you can ask me. यहाँ पे डायमेंशन थ्योरम आप देखते हैं. अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है विद n कॉलम्स, कॉलम n है और रोज m है, तो उसका रैंक उस मैट्रिक्स का और नलिटी, इन दोनों का सम हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आता है. ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. सो रैंक प्लस nullity of some matrix should be equal to n, which is the number of columns of that matrix. अगर हम इसको ट्रांसलेट करें सिंपल वर्ड्स में तो क्या होगा? रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ लीडिंग एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, और नलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इन अ मैट्रिक्स, आप कह सकते हैं द कॉरेस्पॉन्डिंग होमोजेनियस लीनियर सिस्टम. ठीक है, तो इन दोनों का सम हमेशा n आना चाहिए. ठीक है, और यहाँ पे ये एक रिजल्ट देखें कि रैंक जो है वो किसी भी मैट्रिक्स का वो क्या होगा? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इसकी m नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों में से जो छोटा होगा उससे लेस या इक्वल होगा. इट्स ऑब्वियस. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन थ्योरम. ठीक है, डायमेंशन थ्योरम टेल्स अस दैट रैंक एंड नलिटी, the sum of rank and nullity is always equal to the number of columns in a given matrix. ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखें उसी एग्जांपल में, तो आपके पास अगर गिवन मैट्रिक्स आपके पास ये है तो इसका रैंक क्या आया था? इसका रैंक 2 था. हमने इसकी नलिटी क्या फाइंड की थी? 4. ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं बाय डायमेंशन थ्योरम रैंक प्लस नलिटी ऑफ ए इज 6. अगर हमें सिर्फ रैंक पता हो, नलिटी फाइंड करनी हो और ऑर्डर पता हो मैट्रिक्स को, तो हम नलिटी फाइंड कर सकते हैं. अब इस मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स 4 क्रॉस 6 मैट्रिक्स है. ठीक है, अब अगर इस मैट्रिक्स का रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज व्हाट? इट इज 2. ठीक है, तो नलिटी क्या होगी? वी डोंट नीड टू फाइंड इट. ये क्या होगी? दिस नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी नलिटी 4 होगी. मींस डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस मींस नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स जो कि हमें इसमें इसके सॉल्यूशन में डिफाइन करने पड़ेंगे. ठीक है, आई होप यू गेट इट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अगर ए थ्योरम है, अगर ए कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ ए क्या है? द नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस. रैंक क्या है? नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस होमोजेनियस लीनियर सिस्टम. एंड नलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ पैरामीटर्स और नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स. नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या होता है? वो नलिटी होती है किसी भी मैट्रिक्स ए की. ठीक है, अब अगर आप ये एग्जांपल देखें, एग्जांपल में होमोजेनियस लीनियर सिस्टम गिवन है, ए का रैंक गिवन है 5 क्रॉस 7. वो कह रहा है कि आप नलिटी फाइंड करें या नंबर ऑफ पैरामीटर्स फ्री वेरिएबल्स इन द जनरल सॉल्यूशन फाइंड करें. रैंक अगर 3 है तो नंबर ऑफ फ्री पैरामीटर्स या नलिटी क्या होगी इसकी? 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो ये होगा. If you have any question, you can ask me. Otherwise, we are going to have a break of 10 minutes. ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ये भी कर लिया है. Now, after the break, we are going to discuss this thing. Meanwhile, you look at these. You go and have a cup of tea or maybe a glass of water. Okay. Let's have a break of 10 minutes. We shall meet again at 11:22. It's 11:12 and we shall regroup at 11:22. In this theorem, we are going to discuss the consistent linear systems. If we have a linear system, non-homogeneous linear system, Ax is equal to B, this
non-homogeneous linear system will be consistent if and only if B, the right hand side column, B is in the column space of A, in the column space of the matrix A. Now, how can we prove that B is in the column space of the matrix A? Anyone, tell me. Shamir, Hafza, Uzaifa, sorry. Uzaifa? Anyone? Nobody is there? Shamir, are you there? So, Yes, sir. can you tell me how can we prove that the B in the non-homogeneous linear system, the right-hand side vector B, is in the column space of A? How can we prove it? Sir, will we transpose it? No. Any other arrays? Someone is in the chat. Check for the linear dependence. Zephyr? Linear dependence of what? देखिए, कोई भी वेक्टर हमने देखना है अगर कि कॉलम स्पेस में है, तो क्या देखेंगे? इनफैक्ट हम ये देखेंगे कि बी वेक्टर जो है, अच्छा कॉलम स्पेस में क्या होता है बेसिकली? हाँ, दिस ये क्या होता है? हुज़ैफ अरेज, अरेज ने भी चैट में आंसर दिया था। हाँ, हुज़ैफा, सॉरी हुज़ैफा, कॉलम स्पेस में क्या होता है? कैन यू टेल मी? कॉलम स्पेस कैसे बनती है? शामीर, कॉलम स्पेस कैसे बनती है? एनीवन? कॉलम स्पेस कैसे बनती है? सर, आप एचेलॉन फॉर्म में लेके आते हैं। कॉलम स्पेस कैसे बनती है? कॉलम स्पेस की डेफिनेशन क्या है? Let's go back on the previous slides. Now here, what is the column space? Read it and tell me. कॉलम स्पेस कैसे बनती है? यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है इस एग्जांपल में, आई होप यू आर लुकिंग एट दिस स्लाइड नंबर 4। हमने एक मैट्रिक्स लिया था 1 3 -2 2 4 5। इसके जो कॉलम वेक्टर्स हैं, कॉलम स्पेस कैसे आएगी? यहाँ से कॉलम वेक्टर्स का जो सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं, all possible linear combinations of columns of a matrix, ये क्या बनाते हैं? कॉलम स्पेस बनाते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो कॉलम स्पेस को स्पैन करते हैं, यही करते हैं ना? अच्छा, इन बातों को आपने याद रखना है। कॉलम स्पेस कैसे बनती है? ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने ये प्रूफ करना है कि B जो है वो कॉलम स्पेस में है, तो क्या करेंगे? हमने ये प्रूफ करना है कि B जो है वो कॉलम स्पेस के अंदर है। B कॉलम स्पेस के अंदर कब होगा? जब B जो है इस मैट्रिक्स के कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके। मींस B is obtained by one of the linear combination of the column vectors of this matrix. Okay, I hope you get it. Let's now go to that example and try to solve it.
ये वाली कंसिस्टेंट सिस्टम। अब हमने ये प्रूव करना है कि बी जो है वो ए के कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब क्या होगा, बी कॉलम स्पेस के अंदर है, ठीक है। तो यहां पे हमने इनफैक्ट शो क्या करना है कि शो दैट बी इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए। तो ये कब प्रूव होगा, अगर हम बी को एक्सप्रेस कर दें एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ये कॉलम्स हैं, ठीक है, और ये बी है। हमने प्रूव करना है कि बी कॉलम स्पेस में है। तो कैसे प्रूव होगा, अगर हम ये प्रूव कर दें कि बी कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ column vectors of this matrix, then B must be in the column space of A, ठीक है। This is what we have to prove। और ये कैसे प्रूव कर सकते हैं हम, देखें लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिसेस हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे जो A मैट्रिक्स है और X वेक्टर है, इसको अगर हम कॉलम फॉर्म में लिखें तो ये हमने पहले किया हुआ है। इसको हम यूं लिख सकते हैं x1 प्लस 3 2 1 x2 प्लस, यहाँ पे x2 है, x2 प्लस थर्ड कॉलम वेक्टर 2 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है, टाइम्स x3 इज इक्वल टू 1 माइनस 9 माइनस 3, ठीक है। ये अब हमने ये देखा कि ये जो b वेक्टर है इसको हमने एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स लिखा, ठीक है। ये अब इसमें जो अननोन्स हैं वो क्या हैं, x1 x2 और x3। अब हमने क्या करना है, हमने x1 x2 और x3 की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। अगर ये वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तो हम इस b को कॉलम वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर x1 x2 x3 की वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हम क्या कहेंगे कि हम कॉलम वेक्टर्स को b को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स a नहीं लिख सकते। तो अब हमने ये क्या प्रूफ करना है, बेसिकली कि ये जो हमारे पास लीनियर सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है, मींस इसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसका हमने प्रूफ करना है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आप इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखें, ठीक है। किसी भी लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कॉरस्पॉन्डिंग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, 1 1 2 माइनस 3, ठीक है, और माइनस 9 2 1 माइनस 2 और माइनस 3, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आया, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे x1 x2 x3 की वैल्यूज। अगर x1 x2 x3 की एटलीस्ट वन वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तो ये कंसिस्टेंट होगा और b को हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं ऑफ द कॉलम वेक्टर्स ऑफ a, ठीक है। अगर हम b को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ a लिख सकते हैं तो b क्या होगा, वो कॉलम स्पेस में होगा a की। आई होप यू गेट इट। उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो हमने पहले लिखा था उसको सॉल्व करें तो x1 x2 x3 की वैल्यूज ये आ जाती हैं। अगर ये आ जाती हैं तो यहाँ पे x1 की वैल्यू, यहाँ पे x2 की वैल्यू, यहाँ पे x3 की वैल्यू पुट कर दें। ये आपका कॉलम फर्स्ट वेक्टर है, लेट मी दिस वन, ये जो है ये आपका कॉलम 1 है a का, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है और ये राइट हैंड साइड वेक्टर है, ठीक है। तो अब अगर आप इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो यू गेट द राइट हैंड साइड, ठीक है। इट मींस b can be written as a linear combination of column vectors of A. It means that B is in the column space of A. ठीक है? I hope you get it. If you have any question, you can ask me. इसका एक और इजी तरीका भी है, वो क्या तरीका है, अगर स्केयर मैट्रिक्स हो तो सिर्फ तब लगेगा, ठीक है। अगर स्केयर मैट्रिक्स हो तो हमने क्या चेक करना है
कि आपका जो लीनियर सिस्टम है ये वाला, ठीक है, ये जो लीनियर सिस्टम है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए अगर आपके पास स्केयर मैट्रिक्स है, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट चेक करें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स अगर नॉन जीरो होगा तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह भी हम चेक कर सकते हैं, अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि B can be written as a linear combination of columns of A and this system is consistent and B is in the column space of A, ठीक है। दिस इज द शॉर्टकट मेथड। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देयर माइट बी इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस। अगर इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं इस सिस्टम के जिसमें पैरामीटर आता है, तो इन दैट केस आल्सो वी कैन राइट B एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ A, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्यूशन आता ही नहीं है इसका, जैसे कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाता है, तो फिर वी कैन नॉट राइट B एज अ linear combination of column vectors of A and B is not in the column space of A. Okay. If you have any question, you can ask me. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स एक्सरसाइजेस दी हैं मैंने आप लोगों के करने के लिए, ठीक है। ट्राई टू डू दिस एग्जांपल्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन डिस्कस विद मी, यू कैन डिस्कस विद माहम ड्यूरिंग द ट्यूटोरियल्स और ड्यूरिंग हिज हर ऑफिस आवर्स। अब हम ये थ्योरम देखते हैं। हमने इस तरह का थ्योरम पहले देखा था कि अगर A हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, तो देन द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। कुछ हमने इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स पहले भी डिस्कस की हुई हैं, अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स किसी भी थ्योरम में क्या होती हैं कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो सारी ट्रू होंगी, अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो सारी की सारी मस्ट है कि फॉल्स हो, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, A इन्वर्टेबल है। अगर A इन्वर्टेबल है तो आपका जो लीनियर सिस्टम होगा AX = B, उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। आपका जो होमोजेनियस लीनियर सिस्टम होगा उसका ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। A जो है वो रो इक्विवेलेंट होगा INK। A रो इक्विवेलेंट INK कैसे होगा, अगर हम एक पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाते जाएं तो आपके पास यू वुड डेफिनेटली गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसा कि हम इनवर्स फाइंड करने के लिए करते थे। A को एक साइड पे लिखते हैं, I को दूसरी साइड पे। A को हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के I में कन्वर्ट करते हैं, I जो है वो कन्वर्ट हो जाता है A इनवर्स पे। तो A अगर इन्वर्टेबल है तो A रो इक्विवेलेंट होगा IN के। डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, इसका रैंक क्या होगा, हमेशा n के इक्वल होगा, ठीक है। इसमें कोई भी जीरो रो नहीं होगी जब इसको हम एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। सातवीं प्रॉपर्टी क्या है कि A के जो रो वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, कोई भी लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा। कॉलम वेक्टर्स भी इसी तरह A के लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि कॉलम वेक्टर्स अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो आपके पास उसके उस एचेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स A मैट्रिक्स की एचेलॉन फॉर्म में n नॉन जीरो रो होंगी, n नॉन जीरो रोज होंगी, n पिवट एंट्रीज होंगी, कोई भी जीरो रो नहीं होगी, तो वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स में कोई एक रो जीरो आ जाती है तो वो वाला जो वेक्टर होगा रो वेक्टर, वो बेसिकली डिपेंड करेगा बाकी वेक्टर्स, वो सारे के सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहते थे, ठीक है। So this is what this theorem tells us. You have to remember these results of this theorem. ठीक है, आगे चल के हम ये यूज करेंगे स्पेशली 7 and 8, बाकी तो हमने पहले देख लिए हैं। तो 7 and 8 we are going to use them now in the next slide. If you have any question, you can ask me. This theorem is also a very important theorem. This theorem gives us another method of finding basis of the row space and column space from the vectors, means from the rows or columns of A.
पहले हमने क्या किया था कि हमने बेसिस कैसे फाइंड की थी, ए की, हमने उसका रो इक्विवेलेंट बी वेक्टर फाइंड किया था, सॉरी बी मैट्रिक्स फाइंड किया था बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। बी में जो नॉन जीरो रोज थी या कॉलम्स थी, वो रोज थी, वो बेसिस बनाती थी रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स बी एज वेल एज रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए। फिर हम ट्रांसपोज लेके हम कॉलम स्पेस की बेसिस फाइंड करते थे ए की और बी की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा अपडेटेड है, ठीक है, मेथड, जिसमें हम बेसिस फाइंड करेंगे और बेसिस वेक्टर जो है वो बी के नॉन जीरो रोज नहीं होंगी, वो ए की ही होंगी। So let's discuss this theorem and try to find how to find the basis of the row space and column space from the rows and columns of the matrix A itself. Okay. So agar if we have two matrices A and B which are row equivalent means B is obtained by applying elementary row operations on the matrix A. A part क्या है? A given set of column vectors of A is linearly independent if and only if the corresponding column vectors of B are linearly independent. ठीक है, मतलब A के कॉलम वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर उसका जो रो इक्विवेलेंट B मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये हम कैसे देखेंगे आगे, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसको डिस्कस करेंगे। B पार्ट क्या है? A given set of column vectors of A forms the basis of the column space of A if and only if the corresponding column vectors of B forms a basis for the column space of B. अब यहां पे कॉलम स्पेस जो A की होगी उसकी बेसिस वही होगी जो कि B के कॉलम स्पेस की बेसिस होगी। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स होंगे। ठीक है, इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, फाइंड द बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। पहले अब हमने कॉलम स्पेस की बेसिस को फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें और पहले मेथड में क्या डिफरेंस है? इस मेथड में जो बेसिस होंगी कॉलम स्पेस की वो आपके मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में से ही कॉलम वेक्टर्स होंगे, बी में से नहीं होंगे। पहले क्या होता था, बी में से हम फाइंड करते थे। ठीक है, वही जो है वो फिर ए का रो स्पेस की बेसिस या कॉलम स्पेस की बेसिस होती है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस मेथड एंड दिस करंट मेथड। फाइंड अ बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स with that consist of column vectors of A. This is the important part here. ठीक है, that consist of column vectors of A. पिछले मेथड में जो पहले हमने डिस्कस किया था उसमें बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस क्या होती थी? वही होती थी जो कि B के कॉलम स्पेस की बेसिस होती थी। लेकिन यहाँ पे हमने A के कॉलम वेक्टर्स की बेसिस फाइंड करनी है, जो कि वेक्टर्स भी, कॉलम वेक्टर्स भी ए में से हैं। हम क्या करेंगे? द मेथड इज वी अगेन कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू एचेलॉन फॉर्म। अब एचेलॉन फॉर्म में जो जिन कॉलम्स में पिवट एंट्रीज हैं ये वाली, ये क्या होंगे? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। यू कैन चेक इट। ठीक है, आप इन तीन कॉलम्स को C1, C2, सॉरी बेसिकली इनफैक्ट दिस इज C3, C2 जो है उसमें पिवट एंट्री नहीं है, और C5। ठीक है, C1, C3 एंड C5 ये क्या होंगे? ये कॉलम वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, बाकी जो वेक्टर्स हैं वो इन कॉलम वेक्टर्स पे डिपेंड कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इसी तरह ए के जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स हैं, यहाँ पे बी का कॉलम 1 है तो ए का भी कॉलम 1, बी का कॉलम 3 है तो ए का भी कॉलम 3, और बी का कॉलम 5 है तो ए का भी कॉलम 5। ये तीनों कॉलम्स क्या होंगे? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, सिमिलरली एज दिस। ठीक है, तो
ए मैट्रिक्स गिवन है, हमने इसको एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस किया, बी मैट्रिक्स आ गया। बी में जो पिवट एंट्रीज वाले कॉलम होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स होंगे ए में, कॉरस्पॉन्डिंग, बी में अगर C1 है तो ए में भी C1, बी में अगर C3 है तो ए में भी C3, बी में C5 है तो ए में भी C5। ये कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स हैं ए और बी के। ये तीनों कॉलम्स ए के भी क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है। सिमिलरली बी के जो पिवट एंट्री वाले कॉलम्स हैं वो बेसिस बनाएंगे बी की। ठीक है। बी के जो पिवट एंट्री वाले कॉलम्स हैं वो बेसिस बनाएंगे बी के कॉलम स्पेस की। ठीक है। बी के जो पिवट एंट्री वाले कॉलम हैं वो बेसिस बनाएंगे किसकी, बी मैट्रिक्स की कॉलम स्पेस की। इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स हैं ए में, C1 का कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम A1 में, ए में पहले वाला कॉलम, ठीक है, ये वाला, फिर C3 C5, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स होंगे ए के, ये बेसिस सेट बनाएंगे ए के कॉलम स्पेस की। ठीक है। तो अब हमने यहां पे क्या फाइंड करना था, बेसिस ऑफ द कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है। हमने दैट कंसिस्ट ऑफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए। तो ये एक एस सेट होगा जिसमें कॉलम 1 1 2 2 और -1, फिर C3 4 9 9 -4 और C5 5 8 9 -5। ये जो कॉलम वेक्टर्स होंगे ये बेसिस होंगी, बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए। ठीक है। यही हमने फाइंड करना था। अच्छा, ये जो कॉलम्स होंगे, ये वाला पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, ये अगर कोई एक एस, अगर ये S1 सेट है या SA कह दें आपको, SA, और ये SB है, तो इसके जो कॉलम वेक्टर्स आएंगे ये वाले, पहला 1 0 0 0 और फिर 4 1 0 0, ठीक है, और तीसरा कॉलम 5 -2 1 0। ये जो सेट होगा ये बेसिस बनाएगा, बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ बी। ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स की कॉलम स्पेस फाइंड करनी है अगर, दैट कंसिस्ट ऑफ द कॉलम वेक्टर्स ऑफ द सेम मैट्रिक्स ए, हम क्या करेंगे, मेथड इज कन्वर्ट करें इसको एचेलॉन फॉर्म में। ठीक है। एचेलॉन फॉर्म में पिवट एंट्री वाले जो कॉलम होंगे वो बेसिस बनाएंगे इस बी सेट का, की कॉलम स्पेस का। इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स होंगे C1 C3 एंड C5, ये वाले जो कॉलम्स होंगे, सॉरी ये वाला नहीं, C1 एंड C3 एंड C5, ये जो कॉलम्स होंगे ये बेसिस सेट बनाएंगे कॉलम स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है। दिस इज हाउ वी फाइंड द बेसिस ऑफ column space of a matrix A that consists of column vectors of A। ठीक है। अब इस थ्योरम में रोज का कोई कंसर्न, मतलब कोई जिक्र नहीं है। हमने यहाँ पे इस थ्योरम में सिर्फ कॉलम्स या कॉलम वेक्टर्स को और कॉलम स्पेस की बेसिस को डिस्कस किया है, इसमें रो का नहीं है। तो रो स्पेस की बेसिस अगर फाइंड करनी है, दैट कंसिस्ट ऑफ रोज फ्रॉम ए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ए का ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है। अगर हमने यहाँ पे बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स दैट कंसिस्ट ऑफ रोज ऑफ द वेक्टर ए, अगर हमने फाइंड रो वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए अगर हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे। इसमें कॉलम्स, रोज जो हैं वो कॉलम्स बन जाएंगी। ठीक है। रोज कॉलम्स बन जाएंगी। फिर ए ट्रांसपोज की हम बेसिस फाइंड करेंगे कॉलम स्पेस के लिए। ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, ए ट्रांसपोज को आप एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। ठीक है। एचेलॉन फॉर्म में, तो आपके पास एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा सी।
जो कि एचलन फॉर्म में होगा, या आप कोई और मैट्रिक्स इसका नाम रख दें, सी मैट्रिक्स ले दें। अब सी के जो ऐसे कॉलम्स, पिवट एंट्री वाले कॉलम्स जो होंगे, वो बेसिस बनाएंगे सी की कॉलम स्पेस की, और सी के जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स होंगे ए ट्रांसपोज के अंदर, वो बेसिस बनाएंगे कॉलम स्पेस की। ठीक है, ए ट्रांसपोज के अगर वो कॉलम वेक्टर्स होंगे, तो अगर ए हम उसमें ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपके पास ए के रो वेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, वो जो रो वेक्टर्स होंगे बेसिस होंगी ए के रो स्पेस की बेसिस होंगी बेसिकली। ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ रो वेक्टर्स ऑफ ए। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। नाउ दिस वन, ये पहले जो हम कर चुके हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखें, ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने फाइंड अ बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स ए कंसिस्टिंग इंटायरली ऑफ रो वेक्टर्स फ्रॉम ए। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो पहले मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके पास ए वेक्टर ए मैट्रिक्स है, हम क्या करेंगे, इसको पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, अब इसकी जो रोज हैं वो कॉलम्स में आ गई। ठीक है, कॉलम्स में आ गई। अब ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, हमने जिसकी बेसिकली बेसिस फाइंड करनी है कॉलम स्पेस की। ठीक है, तो वही मेथड अब आप कंसीडर करें कि ये एक मैट्रिक्स है जिसकी हमने बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस फाइंड करनी है, दैट कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स फ्रॉम दिस मैट्रिक्स। आप इसको क्या करेंगे, फर्दर रो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, रो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इसकी कॉलम वेक्टर्स देखेंगे पिवट एलिमेंट के साथ। ठीक है, हमने क्या किया, उसको हमने एचलन फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। अब ये कॉलम है जिसमें पिवट एंट्री है या लीडिंग वन है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। ठीक है, तीन कॉलम्स हैं विच इज C1 और C2 और C4। ठीक है, अब ये जो कॉलम्स हैं ये बेसिस बना रहे हैं इस मैट्रिक्स बी की, जो हमने सॉरी सी लिखा था। ठीक है, इस मैट्रिक्स सी का, ये आपके पास एक मैट्रिक्स सी आ गया। ठीक है, ये जो कॉलम वेक्टर्स हैं ये बेसिस बना रहे हैं बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ सी। इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम है C1 C2 C4 जो ए ट्रांसपोज में है। ठीक है, ए ट्रांसपोज में जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम है C1 C2 C4, यहां पे ए ट्रांसपोज में ये क्या है, एक C1 है। ठीक है, अगर लेट मी चेंज द कलर सो दैट यहाँ पे ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है, ये आपका कॉलम 4 है। ठीक है, अब ये किसकी बेसिस सेट बनाएगा, C1 C2 और C4। ये सेट जो है बेसिस होगा बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमने ए ट्रांसपोज की तो बेसिस नहीं फाइंड करनी थी कॉलम स्पेस की, हमने किसकी फाइंड करनी थी, हमने बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स फाइंड करनी थी। तो ये जो कॉलम वेक्टर्स होंगे यहाँ पे, इनको आप इनका ट्रांसपोज ले लें, यू वुड गेट द रो वेक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें, ये जो कॉलम वेक्टर्स हैं हमने इनको रो वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया बाय टेकिंग द ट्रांसपोज। ठीक है, तो आपके पास रो 1 रो 2 और रो 4, इसका जो सेट होगा रो 1 रो 2 और रो 4, ये बेसिस सेट बनाएगा बेसिस ऑफ रो स्पेस of the given matrix A that consists of the row vectors from the given matrix A। ये जो रो वेक्टर्स होंगे
ये A मैट्रिक्स के रो वेक्टर्स हैं, ठीक है. So this is the basis for the row space of the given matrix A. This is what the second method is, how to find the basis of column space and row space that consist of the vectors, row vectors and column vectors from the matrix itself A. Okay. I hope you get every point. If you have any question, if you have any confusion, go ahead, you can ask me. Here are some exercises for you people to for your practice. बुक में भी काफी सारी एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं, वो भी ट्राई करें, ये भी ट्राई करें, ठीक है. अगर आपको कोई इशू आता है तो यू कैन डिस्कस विद मी. आपको आई गिव यू 1 मिनट टू लुक एट दिस प्रोसेस. अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो यू कैन आस्क मी. Now we are going to discuss another example here. Basis of the subspace spanned by a set of vectors. Basically वही है जो पहले हमने डिस्कस किया है. अगर ये जो वेक्टर्स हैं, अगर इसको हम कॉलम वेक्टर्स बना के एक मैट्रिक्स में लिख दें, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दें, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए बन जाएगा. मतलब हमने क्या फाइंड करना है कि ये हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 v4 v5. इनके सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस लें तो इससे एक क्या होगी, स्पेस जनरेट हो जाएगी, ठीक है. तो ये एक सब स्पेस होगी जो कि v1 v2 v3 v4 v5 से स्पेन होगी. अगर हम इन तमाम वेक्टर्स के ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ले लें तो एक इनफिनिट मेनी वेक्टर्स होंगे जो एक स्पेस बनाएंगे, और ये स्पेस जो है सब स्पेस होगी किसकी, v1 वेक्टर में देखें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4. तो v1 v2 सारों में 4 एंट्रीज हैं. तो ये सारे वेक्टर्स किसको बिलोंग करते हैं, R4 को, ठीक है, R4 को बिलोंग करते हैं. ये लिख क्यों नहीं रहा, तो ये R4 को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है. तो जो स्पेस बनेगी सब स्पेस वो R4 की सब स्पेस होगी, ठीक है. अच्छा, जो स्पेन हो रही है इन वेक्टर्स से, तो हमने वो जो सब स्पेस बनेगी उसकी बेसिस को फाइंड करना है, ठीक है, उसकी बेसिस को फाइंड करना है. अब हमने जो पहले मेथड इससे प्रीवियसली पढ़ा है उसमें हमने कैसे हमने फाइंड की थी बेसिस, हमने पहले कॉलम स्पेस की बेसिस फाइंड की थी, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, ये जो वेक्टर्स हैं इनको एज ए कॉलम वेक्टर्स ऑफ सम मैट्रिक्स लिख देते हैं, ए मैट्रिक्स, ठीक है. इन सारे वेक्टर्स को हमने कॉलम वेक्टर्स की में इस लिख दिया और एक मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है. अब आप यही समझें कि ए मैट्रिक्स के जो कॉलम स्पेस है उसकी बेसिस फाइंड करनी है, ठीक है. कॉलम स्पेस में क्या होगा, ए मैट्रिक्स की सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए, वो एक स्पेस जनरेट करेंगे, फिर उसकी हमने बेसिस फाइंड करनी है. तो बेसिस फाइंड करने के लिए किसी भी ए मैट्रिक्स की कॉलम स्पेस की बेसिस कैसे फाइंड करनी है, यही तो हमने पिछले एग्जांपल में डिस्कस किया, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे एचलन फॉर्म में, ठीक है. एचलन फॉर्म में आपके पास एक मैट्रिक्स बी आ जाएगा. फिर बी में बी मैट्रिक्स की जो पिवट एंट्री वाले या लीडिंग वन वाले जो कॉलम्स हैं वो क्या होंगे, वो बी की बेसिस बनाएंगे, और जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ए के होंगे वो ए की कॉलम स्पेस की बेसिस बनाएंगे, ठीक है. इसका मतलब ये है कि जो स्पेस इन वेक्टर से जनरेट होगी, स्पेन होगी, उनकी बेसिस हम ए की कॉलम स्पेस की जो बेसिस होगी वही होगी, ठीक है. फिर यहाँ पे जो कॉलम्स होंगे उनका अगर आप ट्रांसपोज लें तो उनको आप रो वेक्टर्स की फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है. इट्स अ सिंपल थिंग. बी ए पार्ट में, बी पार्ट में क्या है, एक्सप्रेस ईच वेक्टर नॉट इन द बेसिस ऑफ दिस सबस्पेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर. दिस इज इंपॉर्टेंट.
ये हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है। मींस देखें, अगर आपके पास ये ए कॉलम वेक्टर है, ठीक है, तो इसका फॉर एग्जांपल C1, C3 और C5, लेट लेट मी कंफर्म के कौन से होंगे, यही होंगे। C1 है, 2 है, 5 है, सॉरी 1 2 4 है, ठीक है। अब देखें, आपके पास C1, 2 और 4 ये आपके पास बेसिस बनाएंगे, C1, C2 और C4 ये बेसिस बनाएंगे कॉलम स्पेस ऑफ A। अच्छा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो V1 और V2 और V4 जो होंगे, ये एज ए रो वेक्टर बेसिस बनाएंगे सब स्पेस ऑफ R4 विच इज स्पेन्ड बाय these वेक्टर्स। ये बेसिस होंगी V1, V2, V4। अब V1, V2, V4 जो हैं वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इसको पहले हमने डिस्कस किया है कि क्यों होंगे। V1, V2, V4 ये तीन वेक्टर्स जो हैं इनका सेट ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, और ये बेसिस बनाएंगे इस सब स्पेस ऑफ R4 की। अब जो बाकी वेक्टर्स हैं मसलन V3 और V5 ये बेसिस में नहीं है, तो ये क्या होंगे, डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। किस पे डिपेंड करेंगे, बेसिस सेट के वेक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। हम V3 को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बेसिस सेट लिख सकते हैं। इसी तरह V5 को हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स लिख सकते हैं। ये हमने लिखना है कि V3 को हम कैसे लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स। दिस इज व्हाट पार्ट बी इज आस्किंग फ्रॉम अस। तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिस फाइंड करनी है गिवन वेक्टर्स को। अगर ये रो वेक्टर्स गिवन है तो आप इसको कॉलम वेक्टर्स में लिख दें। अगर ये ऑलरेडी कॉलम वेक्टर्स में गिवन है तो आप इनको कॉलम वेक्टर्स में ही लिखेंगे, ठीक है। चाहे रो वेक्टर्स हो चाहे कॉलम वेक्टर्स हो, आपने मैट्रिक्स में हमेशा कॉलम वेक्टर्स ही लिखने हैं, ठीक है। फिर आपने इसकी कॉलम स्पेस की बेसिस फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, ए को आप एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद आपने देखा कि ये कॉलम और ये कॉलम, ये क्या है, लीडिंग वन वाले कॉलम्स हैं, पिवट एंट्री वाले कॉलम हैं। तो आपके पास जो सेट होगा कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 4 ये बेसिस बनाएंगे बी की कॉलम स्पेस के, और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स कॉलम वेक्टर्स होंगे ए में वो बेसिस बनाएंगे मैट्रिक्स ए की, ठीक है। तो अब फिर आप उसका ट्रांसपोज ले लें तो आपके पास V1, V2 और V4 आ जाएगा जो कि ओरिजिनल वेक्टर्स हैं, रो वेक्टर्स। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और ये बेसिस होंगी फॉर द स्पेस स्पेन्ड बाय द गिवन वेक्टर्स V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। ये हमारे पास बेसिस आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, जो V3 और V5 हैं जो कि बेसिस सेट में नहीं है, V3 और V5 उनको हमने एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स लिखना है ऑफ बेसिस वेक्टर्स, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अगर आप ये देखें, अच्छा कौन कौन से वेक्टर्स लिखने हैं, V3। पहले V3 को देखते हैं कि ये एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स लिख सकते हैं या नहीं। तो V3 आपका मींस कॉलम 3 है। कॉलम 3 आपके पास ये है, ये कॉलम 3 है, ठीक है। कॉलम 3 ये है। अब कॉलम 3 को क्या हम कॉलम 3 को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम 1 और कॉलम 2 लिख सकते हैं, एनीबॉडी? क्या कॉलम 3 स्केलर मल्टीपल ऑफ कॉलम 1 और कॉलम 2 या इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं? एनीवन? Adeen, can you tell me how can we write column 3 as a linear combination of column 1 and column 2? In the chat window, 2C1 minus C2, Shahryar. क्यों जी? Anyone else? शहरियार ने ठीक लिखा है, चैट विंडो में देखें। C3 को हम लिख सकते हैं 2C1 minus C2, ठीक है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा। शहरियार ने बिल्कुल ठीक लिखा है। इसी तरह V3 को हम कैसे लिख सकते हैं,
2v1 माइनस v2। यहाँ पे c1 है तो वो v1 हो जाएगा, c2 है तो वो v2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि v जो है वो रो वेक्टर्स हैं और c जो है वो कॉलम वेक्टर्स हैं, तो कॉलम वेक्टर्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो रो वेक्टर्स बन जाएंगे। अब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशंस है ये वाला, ये ओरिजिनल वेक्टर्स के लिए भी वैलिड है, ठीक है। ओरिजिनल वेक्टर्स का जो v3 होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा 2v1 माइनस v2, आप चेक कर लें बेशक, ठीक है। अगर आप देखें ओरिजिनल वेक्टर्स को यहाँ पे, तो v3 अगर आप देखें यहाँ पे v3 वो क्या है 2v1 माइनस v2 है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 2v1 क्या है आपके पास 1 माइनस 2 0 3 माइनस v2 क्या है आपके पास 2 माइनस 5 माइनस 3 6। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा, यू मस्ट गेट 0 1 3 0, ठीक है। देखिए 2 इंटू 1 माइनस 2 तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह बाकी सॉल्व करें। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज योर v3, ठीक है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वैलिड होगा ओरिजिनल वेक्टर्स के लिए भी। लेकिन आपने लिखा कैसे, आपने इस जो एचलन फॉर्म में मैट्रिक्स है इसको देख के आपने लिखा। अगर ये इसके लिए वैलिड है तो ये ओरिजिनल वेक्टर्स के लिए भी वैलिड होगा, ठीक है। अब हमने v5 को लिखना है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 5 कॉलम 4। एनीवन कैसे लिखेंगे, आप पहले कॉलम 5 को लिखें। कॉलम 5 को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 4 कैसे लिख सकते हैं, एनीवन? इट्स इजी यार, ये कॉलम 5 है, इसको एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम 1 कॉलम 2 या कॉलम 1 कॉलम 3 या कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, तो किसी भी दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किसी एक वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, या तीनों वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। शेख ज़ुएब, गुड। ऐसे ही लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C4, तो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 4, तो ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा C5 इन टर्म्स ऑफ C1 C2 एंड C4, ठीक है। यस अदीन, बिल्कुल ठीक, आपने भी ठीक लिखा, ठीक है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग V5 क्या होगा, ये वही होगा V1 प्लस V2 प्लस V4, ठीक है। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हमने बी पार्ट को भी डिस्कस कर लिया है। हमने जो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो कि बेसिस सेट में नहीं है, यहाँ पे सॉरी, ये बेसिस सेट में v1 v2 v4 हैं, जो अदर देन बेसिस सेट हैं v3 और v5, हमने इनको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स लिख लिया, ठीक है। I hope you get this point. If you have any confusion, you can ask me. इसको मैंने स्लाइड पे इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया होगा, ये आप पढ़ लें। तो I hope you understand it. If you have any question, you can ask me. These are a couple of exercises for you people to do yourself at home. इसके अलावा बुक में क्वेश्चंस हैं, you can read them, you can try to solve them. अगर कोई मसला होता है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो you can discuss with me in next lecture. प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, तो वहां से ट्राई करें सॉल्व करने की। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।